students, welcome to science class. My name is Rashmi and I am from Raj International School. Today I am going to start chapter number 5 and the name of the chapter is coal and petroleum. Dear students, we use large number of materials in our routine life for fulfillment of our basic requirements. Like we use soil, sunlight, water, air, etc. All these materials are found in nature, so they are called the natural resources. On the other hand, synthetic fibers, plastics, explosives, drugs, etc. are synthesized in industries, so they are called the man-made material or the artificial material. क्योंकि इन सब मटेरियल्स को हमने इंडस्ट्रीज में बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, इसलिए ये आर्टिफिशियल मटेरियल कहलाते हैं. Students, firstly we need to understand the term of resource. What is the meaning of resource? Resource, anything in the environment which can be used are called the resources. जितनी भी चीजें हैं जो हमें प्रकृति से मिल रही हैं, नेचर से मिल रही हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगी. और जो चीजें हमने इंडस्ट्रीज में बनाई हैं, ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं, वो सारी हमारी आर्टिफिशियल कहलाएंगे या ह्यूमन मेड कहलाते हैं. We can divide the natural resources into two categories. Number one, inexhaustible natural resources, and number two, exhaustible natural resources. The term inexhaustible means which cannot be used up completely. They are unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted in the near future. बहुत जल्दी ये खत्म होने वाले नहीं हैं. वो सारे resources inexhaustible natural resources कहलाते हैं. Like sunlight, air, water. ये सारे हमारे inexhaustible इसलिए हैं क्योंकि ये नेचर में renew होते रहते हैं अपने आप by the natural process. On the other hand, second one is the exhaustible natural resources. Exhaustible, the term exhaustible means which can be used up completely. They are limited quantity in nature and are likely to be exhaustible by the human activities. And examples are coal, petroleum and the minerals. In this chapter, just we will discuss about the coal, petroleum uses, their uses, how they are formed in the environment, etc. Coal and petroleum both are called the fossil fuels also because they are obtained from the dead remains of the living organisms. Clear? Just we discussed about the natural resources, inexhaustible natural resources, exhaustible natural resources and their examples also. In this video session, we will start from the coal, formation of coal and the uses of coal. कोल का फॉर्मेशन नेचर में कैसा होता है, कोल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो सेशन में, इस वीडियो क्लिप में हम डिस्कस करेंगे. कोल इज अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मटेरियल एंड इट इज फाउंड इन द कोल माइंस डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. इन इंडिया इट इज फाउंड इन द मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल and it is the major source of the energy in our country. Formation of coal. कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, नेचर में कोल बनता कैसे है? Actually, about 300 million years ago, there was a dense forest under the low-lying wet areas on the Earth's surface. And after the natural processes, just these trees buried deep under the surface of the earth and converted into the coal. बहुत टाइम पहले 300 मिलियन ईयर्स पहले बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था सरफेस पर और नेचुरल कैलेमिटीज आई, कुछ ऐसा ही नेचुरल प्रोसेस हुआ लाइक अर्थक्वेक कह सकते हैं हम, वोल्केनो कह सकते हैं या फिर ये कहें कि फ्लड आई, फ्लड भी हो सकता है. तो उसकी वजह से ये सारे के सारे जो फॉरेस्ट थे वो दब गए, ये अर्थ सरफेस में नीचे बरीड हो गए और उनके ऊपर लेयर डिपॉजिट होती चली गई. सॉइल की लेयर डिपॉजिट होने से सरफेस के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड इन द absence of air, these wood of the plants converted into the coal and this process is called the carbonization. ये एक स्लो प्रोसेस है और इस प्रोसेस पे मीन्स जो वुड थी, प्लांट्स की जो लकड़ी थी वो कन्वर्ट हो गई कोयले में और इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं. क्लियर? नाउ यूजेस ऑफ कोल. कोल का यूज कहाँ किया जाता है? तो कोल का यूज एज अ फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्री.
घरों में हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है एज ए फ्यूल। सेकेंड वन, इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली पैदा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है। और इंडस्ट्रीज में जो फर्नेस होती हैं, जो भट्टियां होती हैं, उनमें भी हम एज ए फ्यूल कोल का यूज करते हैं। थर्ड वन इज टू मेक कोक। कोक बनाने के लिए, बिकॉज कोक, कोल तार, कोल गैस, ये नेक्स्ट जो हमारा वीडियो सेशन होगा, वीडियो क्लिप जो होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को। तो कोक को बनाने में भी कोल ही मेन प्रोडक्ट होता है, कोल ही मेन चीज हम लेते हैं, कोल को लेकर ही हम कोक बनाते हैं। तो दीज आर द मीन्स यूजेस। और पहले टाइम में जो स्टीम इंजन हुआ करते थे, तो स्टीम इंजन में भी स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए कोयले को ही जलाया जाता था। तो these are all about the uses of coal, formation of coal, and what is coal exactly. So students, we discuss about the coal, how coal is formed, and what are the uses of coal. In this session, we will start from the products of coal. What are the products of coal? Number 1, coke. Number 2, coal tar, and number 3, coal gas. Coke. Coke is a tough, porous, black, solid substance. It is an almost pure form of carbon. It is 98% of carbon. It is made up of 98% of carbon. And when coal is heated in the absence of air, then coal tar and coal gas both are eliminated, and the black residue that is left behind, it is coke. और अगर हम कोक और कोल को कंपेयर करते हैं बेसिकली, तो हम ये पाएंगे कि कोक जो है वो बहुत अच्छा फ्यूल है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है एज कंपेयर टू कोल। और सेकेंड थिंग इज, अगर जो स्मोक जो होता है, स्मोक जो प्रोडक्शन है वो कोक में बहुत कम होता है एज कंपेयर टू कोल। सेकेंड प्रोडक्ट इज कोल तार। कोल तार थिक ब्लैक लिक्विड सब्सटेंस होता है और इसकी बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होती है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ 200 हाइड्रोकार्बन्स, और जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो कोल तार की ही बनी होती है। पहले टाइम में हम जो रोड को बनाने के लिए, टू मेटलिंग द रोड सरफेस, जस्ट वी यूज कोल तार। नाउअडेज वी यूज बिटुमन एज ए फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड्स। उसके कंपेरेटिवली ये जो बिटुमन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, तो हम आजकल बिटुमन का यूज करते हैं, जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। आगे जब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे तो बिटुमन को भी डिस्कस किया जाएगा। थर्ड वन इज कोल गैस। कोल गैस और कोल तार, जब कोल को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, देन बोथ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, कोल तार और कोल गैस। कोल गैस जो होता है वो गैसियस फ्यूल है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और पहले टाइम में इन 1810 सबसे पहले इसको यूज किया गया था लंदन में एज ए फॉर द स्ट्रीट लाइटनिंग। और आजकल जो हम यूज करते हैं तो लाइटनिंग के पर्पज से नहीं करते हैं, हम इसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है और ये हमारे लिए बेटर है, तो इसका यूज इस तरीके से किया जाता है। सो वी डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, कि कोल के प्रोडक्ट और हम उसको रिफाइन करके किस तरह से हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।